اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 13 ربیع الاول 1442 ہجری، 31 اکتوبر 2020 عیسوی، 14 گتے کارتک 2077 بکرمی، سنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا سوال و جواب کا لائیو پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر آپ یہ پروگرام سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا نمبر ہے 041 590 239، وہی پرانا نمبر آپ کے ساتھ ہے، اس پر کال کر کے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ پروگرام فی الوقت 2 فیس بک ID پر چل رہا ہے۔ ایک جنک نندنی FM، اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ ہماری آواز، ہمارا پروگرام وہاں سن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فیس بک ID NID لکھ کر سرچ کریں گے تو وہاں ہمیں آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی لکھ کر دے سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ پروگرام ہمارے اس FM سے تقریباً 1 رمضان المبارک سے پیش کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کی خدمت میں، اور ہر ایک پروگرام کو فیس بک پر بھی لائیو پیش کیا جاتا ہے، اور ہر پروگرام کو YouTube چینل بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے خاص ہمارا YouTube چینل ہے صدائے حق۔ صدائے حق کہہ کر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ YouTube چینل میں جائیں اور سبسکرائبر بنیں اور ہمارے پروگرام کو لائک کریں، سنیں، دیکھیں۔ اپنے وقت کے مناسبت سے آپ پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا ہمارا نمبر پرانا ہی نمبر ہے 041 590 239 اور نیپال کے باہر سے فون کرنے والے بھائیوں کے لیے 00977 41 590 239۔ میرے بھائیوں، دوستوں، آج کل جو ماحول چلا آ رہا ہے، اسلام اور اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کارٹون کے اوپر جو بحث چل رہی ہے، اور فرانس نے جو حرکت کی ہے، وہ بہت ہی نازیبا ہے اور بہت ہی غلط ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دھرم کے گرو کو، کسی دھرم کے رشی منی کو آپ برا بھلا کہیں، کسی دھرم کے آستھا کو غلط کہیں اور ان پر غلط نشان لگائیں۔ یہ آزادی رائے نہیں ہے، رائے کی آزادی نہیں ہے۔ رائے کی آزادی کی کچھ شروط ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ کسی دھرم پر ڈائریکٹ نکیر نہ ہو، کسی دھرم پر اعتراض نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، دل میں تکلیف نہ ہو، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں۔ آپ اپنے حقوق کے لیے اپنے حکومت سے آزادی رائے رکھ سکتے ہیں، پارلیمنٹ میں آپ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں، میٹنگ میں اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔ آزادی رائے کا حق اسلام نے سب سے زیادہ انسانوں کو دیا ہے، جس کا بہت زیادہ ثبوت ہماری اسلامی تاریخ میں ملتا ہے، جس کا ابھی وقت نہیں ہے۔
बहरहाल फ्रांस जैसे और भी दूसरे ममालिक इस्लाम धर्म और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गलत बातें शाये करते हैं उनकी भरपूर मजम्मत की जा रही है और उनके लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि उन लोगों को इस्लाम की सही समझ अता फरमाए। इस्लाम कुरान और हदीस का माना मतलब है, आप अगर असली इस्लाम देखना चाहते हैं तो कुरान का अनुवाद, कुरान का ट्रांसलेट हर भाषा में मौजूद है, आप उसको पढ़ें, हदीस की किताबें पढ़ें, पुराने उलमा की किताबों को पढ़ें। आजकल के जो मुसलमान हैं, नाम नहाद मुसलमान, इनके करतूत को न देखें, इनके करतूत को देख करके आप असल इस्लाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे फेसबुक पर बहुत भाई जुड़े हैं। मोहम्मद निज़ाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये हरलाखी से हैं। ये मोहम्मद सगीर आलम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल खबर है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। और सलीम शाकिर खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई सवाल हो तो आप लोग पेश करें, तो इंशाअल्लाह उन सवालों के जवाबात दिए जाएंगे। नहीं तो हम फिर व्हाट्सएप पर जो सवालात आए हैं उनकी तरफ हम पेश करेंगे, उनकी तरफ तवज्जो मबजूल करके आपके सामने उनके सवालात के जवाबात देने की कोशिश मैं करूँगा। आज का नंबर 041-590-239, आप इस पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप अपने सवालात पेश कर सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सामीन किराम से एक गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सवालात करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका जवाब दिया जाएगा। मफला खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब तक किसी का सवाल नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूं कि व्हाट्सएप पर जो सवालात आए हुए थे उनकी तरफ तवज्जो मबजूल करूं और उनको जवाब दूं। एक भाई मीना फातिमा एक बहन है शायद, फेसबुक पर, माशा अल्लाह आपने जो पैगाम दिया बहुत ज़रूरत है इसकी। अल्लाह तबारक व तआला सबको हिदायत दे, सबको सही समझ अता फरमाए और सबको बेहतरीन सोच समझ करके आपस में मिलजुल कर रहने की कोशिश करें। जब इंसान ही आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो क्या जंगल में जिस तरह से जानवर एक दूसरे पर हमला करके खा लेते हैं और एक दूसरों को परेशान करते रहते हैं, तो हम में और उनमें क्या फ़र्क हुआ? तो आज इंसान ही इंसान से परेशान हाल है, इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ है। सियासी हिसाब से देखिए, धार्मिक हिसाब से देखिए, सामाजिक हिसाब से देखिए, एक दूसरे के जलन में लगे हुए हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़जाना से हर शख्स को नवाजता है, किसी को ज़्यादा नवाजता है, किसी को कम नवाजता है, लेकिन इंसान को कोशिश करना चाहिए। अगर किसी को अल्लाह ने ज़्यादा दौलत दी तो हमें जलना नहीं चाहिए, हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की तदबीर और अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम पर हम नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम पर कौन नाराज़गी ज़ाहिर करेगा? मेरे भाइयों दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माल गनीमत तक़सीम कर रहे थे तो एक आदमी ने कहा कि या मोहम्मद इत्तक़िल्लाह व आदिल, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरिए और इंसाफ कीजिए, बिल्कुल इंसाफ के साथ आप तक़सीम कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि जब मैं ही इंसाफ नहीं करूँगा तो कौन इंसाफ करेगा? मैं ही नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बहरहाल वो खवारिज में से खवारिज का सरदार था और उसी की नस्ल से खवारिज लोग पैदा हुए। अला कुल्ल हाल अभी का जो माहौल है उस माहौल में हम मुसलमानों को इस्लाम का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जो इस्लाम ने तौर तरीक़ा बताया है कि हम गुस्से में आकर के दूसरे धर्म वाले के देवी देवताओं को, उनके माबूदों को, उनके ऋषि मुनियों को गाली दें, ऐसा इस्लाम ने इजाज़त नहीं दिया है। और ईसाई के जो नबी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जब तक ईसा अलैहिस्सलाम पर कोई बंदा
مسلم ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے لیے تو سارے انبیاء کرام مکرم اور محترم ہیں، سارے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ تو ان کی بیوقوفی یا حسد یا جلن ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ ہم اپنی دعوت، ہم اپنی باتیں، قرآن حدیث کی باتیں ہم ان کے سامنے پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ واٹس ایپ سے سوال آیا ہے، فوت شدہ شخص کے نام پر صدقہ و خیرات کے جائز طریقے کیا کیا ہیں جن سے ان کو ثواب ملے؟ سوال کرنے والے ہیں آزاد رائن ڈھلکے ور دھنوشا نیپال۔ جواباً عرض ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اور خاص کر زیادہ دنوں تک جاری رہنے والے جو کام ہیں وہ کام کرنا چاہیے، جیسے کہیں پہ مسجد بنوانا، کہیں پہ پائپ گلوا دینا، کہیں پہ کنواں کھدوا دینا، بہترین کتابیں جیسے قرآن مجید، بخاری، مسلم وغیرہ کتابیں کسی مدرسہ میں دان دینا، ان سارے کام کا ثواب میت کو ملے گا اگر میت کی نیت سے کر رہے ہیں تو یہ سب صدقہ اور خیرات کے طور طریقے ہیں، تو یہ جاری رہنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کسی مدرسہ میں چندہ دے سکتے ہیں میت کے نام پر، مدرسے مسجد میں پنکھا وغیرہ لگا سکتے ہیں، وضو خانہ نہیں ہے تو وضو خانہ بنا سکتے ہیں، یتیموں کی کفالت کر سکتے ہیں، مدرسوں میں 2-4 بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے میت کو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی اچھا ثواب ملے گا اور بہتر ثواب ملے گا۔ اس کی دلیل آئیے دیکھتے ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں انتقال کر گئی، جب وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ ان امی توفیت وانا غائب عنہا اینفعها شیء ان تصدقت به عنہا قال نعم۔ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں، میری امی انتقال کر گئی ہے اور میں ان سے دور تھا، باہر تھا، کیا ان کی طرف سے میں صدقہ کروں گا تو وہ ان کو نفع پہنچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ قال، تو سعد بن عبادہ نے کہا فإنی اشہدک ان حائطی المخراف صدقۃ علیہا، میں آپ کو گواہی دیتا رکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا فلاں باغیچہ جو مخراف نام کا ہے وہ ان کی طرف سے صدقہ ہے، وہ ان کی طرف سے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 2756 اور مسلم حدیث نمبر 1004۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے اور خاص کر اپنے ماں باپ کی طرف سے آدمی کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے، اور جو صدقہ زیادہ دنوں تک چلے وہ صدقہ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے، صدقہ دینے میں آدمی کو نیت میں خلوص رکھنا چاہیے، خالص نیت رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہوگی تو وہ صدقہ لمبے دنوں تک چلے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، جب مدینہ میں ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مسلمانوں کو پانی پینے کی بڑی دشواری ہوئی، کوئی کنواں نہیں میٹھے پانی کا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ یہ پانی مسلمان لوگ پئیں گے۔ نیت صاف تھی، اب تک وہ کنواں موجود ہے اور اب تک وہاں سے جو ہے کھیتیاں ہوتی ہیں، سیرابی ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل سے میں بھی وہاں جا کر کے کنواں کے اندر بھی داخل ہونے کا طریقہ بنایا ہے، اس میں جا کر کے میں اس کا پانی پیا ہوں، تو وہ کنواں اب تک موجود ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سے جو کرسی سے جو فائدے ہوتے ہیں ان سے وہاں حکومت نے ایک ہوٹل قائم کیا ہے، اور وہ ہوٹل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے صدقہ ہے، اور اس کا پورا خرچ غریبوں، مسکینوں اور مساجد و مدارس اور نیک کام میں خرچ ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ فائدہ ہے نیت خالص ہونے کا۔ دوسری دلیل، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها واراها لو تکلمت تصدقت افاتصدق عنها قال نعم تصدق عنها۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری امی اچانک
उनकी रूह परवाज हो गई, अचानक इंतकाल कर गई, और मैं समझता हूँ, गुमान करता हूँ कि अगर वो कुछ बोलती तो सदका ज़रूर करती, तो सदका ज़रूर करती, तो क्या मैं उनकी तरफ से सदका कर सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाम तसद्दक़ अन्हा, हाँ उनकी तरफ से तुम सदका करो, सदका खैरात करो। बुखारी की रवायत है, यह हदीस नंबर 2760। इसी तरीके से हज़रत साद बिन उबादा की एक दूसरी रवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, इन्न उम्मी मातत अफ़ा अतसद्दक़ अन्हा, मेरी माँ इंतकाल कर गई है, क्या मैं उनकी तरफ से सदका करूं? तो आपने फरमाया कि हाँ करो। तो फिर साद ने पूछा, अय्यु सदक़त अफ़ज़ल या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है? तो आपने फरमाया सक़युल माँ, सक़युल माँ, पानी पिलाना, लोगों को पानी पिलाना। फ़तिल्क सक़ायत सादिन बिल मदीना, तो उन्होंने क्या किया, मदीना में एक कुआं खुदवाया माँ की तरफ से, और वो मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। तो रावी कह रहे हैं कि ये फला जगह का जो कुआं है ये साद ही का कुआं है, पानी पिलाने का है। ये हदीस सुनन नसाई हदीस नंबर 3666, शेख अलबानी ने इसको हसन लगैर ही कहा, और ये हदीस आपको मुस्नद अहमद में मिलेगी 22459 में। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये सदका करने का तरीका है। और देखिए, जब मैयत को जब मौका मिलेगा, अल्लाह ताला मौका देगा, तो उस वक्त वो मैयत क्या कहेगी, या वो मुर्दा क्या कहेगा अल्लाह ताला से कि अगर आप हमें थोड़ी मोहलत दे दें, तो सूरह जुमा के बाद जो सूरह मुनाफिकून की आखिरी आयत है, तो फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, तो मैं सदका करूंगा और नेक लोगों में से। वहाँ ये नहीं कहा कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, वहाँ ये नहीं कहा कि हज करूंगा, वहाँ ये नहीं कहा कि ये करूंगा वो करूंगा। फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं सदका करूंगा और नेक लोगों में से हो जाऊंगा। देखिए, सदका की उस वक्त भी ख्वाहिश मैयत की होगी कि वो सदका करे। आज हम एक एक पैसा भी, कोई गरीब फकीर आता है घर पे तो देने से कतराते हैं, ये झूठा है, तो ये है वो। आपके दरवाजा पर आया है, आप उसको जो मुयस्सर है दें। आधा किलो चावल हो, 1 पाव चावल हो, 10 रुपये हो, जो भी हो मांगने वाले को दीजिए, वही आपके लिए आखिरत में तोशा बनेगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मैयत की तरफ से सदका देने वाले को भी सवाब मिलेगा। जो मैयत को तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन उनके जो बाल बच्चे मैयत की तरफ से जो सदका करेंगे, तो सदका करने वाले को भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब देगा। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। कुछ भाइयों का सवाल आया है। मोहम्मद सगीर आलम, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है कि मस्जिद के ज़मीन किसी पान या गुटखा बेचने वाले को किराए पर दुकान करने के लिए दे सकते हैं? कुरान हदीस के रोशनी में जवाब देकर शुक्रिया का मौका दें। मैं दुबई से। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सवाल है। देखिए, मस्जिद के नीचे या मस्जिद के साइड में जो शटर बने हुए हैं, हम जायज़ काम बेचने के लिए, जायज़ सामान बेचने के लिए हम लोगों को दें। आप जब किराए पर लगाएं तो उसी वक्त कह दें कि आप इसमें जर्दा या गुटखा या खैनी या बीड़ी या सिगरेट आप इसमें नहीं बेच सकते हैं। जो आम हाजत की चीज़ें हैं, आप उन्हीं को बेच सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को बेच सकते हैं। तो वैसे ही भी गुटखा खाना और जर्दा या तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पीना वगैरह, ये अक्सर उलमा के नज़दीक हराम है। इसलिए उन लोगों को किराए पर नहीं देना चाहिए, उन लोगों को किराए पर नहीं देना चाहिए, किसी दूसरे लोगों को देना चाहिए। बहुत लोगों को हमने देखा है कि माशाअल्लाह जो है शटर बना लिए, दारू को दुकान वाले को दे दिया। पैसा तो आ रहा है मौलाना, हम क्या करें, पैसा तो आ रहा है। अरे भाई, गलत चीज़ की तरफ से पैसा आ रहा है, गलत तरीके से पैसा आ रहा है। हाँ, मुझे याद है कि एक आदमी को काठमांडू में बेहतरीन ज़मीन, बेहतरीन शटर, बेहतरीन सामान मिल रहा था, लेकिन वो टीवी और सीडी बेचने की दुकान थी, तो सस्ते में मिल रही थी। उस शख्स ने कहा कि मैं ये सीडी और ये करके मैं रोज़ी कमाना नहीं चाहता हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, उसने छोड़ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा होना चाहिए। ऐसे लोगों को शटर देना नहीं चाहिए जो हराम चीज़ें बेचें। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। सलीम शाकिर खान
मौलाना एक मसला यह बताएं कि बहुत से लोग नमाज रोज़ा व तबलीग दीन को इशाअत तबलीग दीन की इशाअत के बहुत से काम करते हैं मगर उसके बावजूद गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हैं, जैसे किसी की ज़मीन गस्ब कर ली या भूनो या कुछ बातें हैं जो समझ में नहीं आती है लिखने वाले भाई। ज़मीन हसब कर ली या बहन व लड़कियों को मिरास का हिस्सा नहीं देते हैं, तो क्या ऐसे लोग जन्नत में दाखिल हो सकेंगे? उसमें ज़्यादा तो अहले इल्म हज़रात ज़िम्मेदार हैं, जैसे कि हम अपने गांव व क़ुर्ब जवार में काफ़ी उलमा व दीनदार हैं मगर एक ने भी अपनी लड़की या बहनों को मिरास का हिस्सा नहीं दिया है। अल्लाहुल मुस्तआन। ये बहुत अफसोस की बात है कि जब लड़कियों को और बहनों को जब हिस्सा नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? ये बहुत ही गलत है, बहुत ही हराम काम है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब, गुनाह कबीरा करने वाला काफिर नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला के मशीयत के नीचे है वो। अगर अल्लाह ताला चाहे तो उसकी नेकियां देख करके उसको माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर सकता है, या चाहे तो उसको सज़ा देने के बाद जन्नत में दाखिल करे। जब तक उसने शिरक नहीं किया है और शिरक करने के बाद बगैर तौबा किए हुए मर गया तो उसकी एक भी नेकी काम नहीं आएगी और वो शख्स जहन्नम में जाएगा। लेकिन अगर गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है तो वो एक न एक दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जाएगा, बशर्ते कि उसने शिरक न किया हो। तो आपका ये सवाल बहुत ही दुख वाला है, दुख की बात है। लोग जो है दूसरों को नसीहत करते हैं, दूसरों को समझाते हैं और ख़ुद उसमें पीछे रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना क़तअन जायज़ नहीं है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। शराज काठमांडू, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शेख साहब, औरत फ़र्ज़ नमाज के वक्त इक़ामत कह सकती है या नहीं? कुरान और हदीस से वजह के लिए यानी वाज़ेह कीजिएगा, कुरान हदीस से वाज़ेह कीजिएगा। देखिए, औरतों पर चूँकि जमात वाजिब नहीं है और घर में तन्हा पढ़ती है, इसलिए बहुत सारे उलमा ने कहा कि उन पर इक़ामत नहीं है। अगर बगैर इक़ामत के भी पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर इक़ामत भी कहे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। दोनों उसके लिए छूट है। लेकिन बेहतर है कि अगर 2 या 3 औरतें एक साथ नमाज पढ़ रही हैं तो वो इक़ामत पढ़ ले, इक़ामत कह ले, तब उसको नमाज पढ़ना चाहिए। ये वाजिब नहीं है, ये बेहतर चीज़ है, बेहतर अमल है, बेहतर चीज़ है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, ये प्रोग्राम आप जनक नंदनी FM पर सुन रहे हैं और मैं आपसे मुखातिब हूँ मोहम्मद मुस्तकी मदनी, और ये जनक नंदनी 95.5 मेगाहर्ट्ज़ जनकपुर धाम धनुषा नेपाल से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मैं सामईन किराम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, मेरे लड़के की, उनके शिफा के लिए, उनके सेहतयाबी के लिए आप लोग दुआ करें अल्लाह तबारक तआला से कि अल्लाह ताला जल्द उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। सलीम शाकिर खान, शेख साहब, आप लोगों की दीन की इशाअत करते हैं, क्या आपने अपनी बहन या बेटी को हिस्सा दिया है जो शरीयत इस्लामिया में है? मेरे वालिद साहब अभी ज़िंदा हैं, तो उनकी बेटियों को यानी मेरी बहन को अभी देने का वक्त ही नहीं आया है, और बेटी का हिस्सा तो मैं अभी ज़िंदा हूँ और मेरी अहलिया भी ज़िंदा है। तो ज़िंदा में हिस्सा किस चीज़ का? मरने के बाद हिस्सा होता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि मैं वो उन लोगों का हक़ नहीं मारूंगा, इल्ला है कि वो लोग दस्तबरदार हो जाएं, वो अलग बात है। नहीं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं देने की कोशिश करूंगा, मैं दूंगा। और अगर कुछ हुआ तो मैं अपने बच्चे को मैं तलकीन करके वसीयत करके जाऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जज़ाकल्लाहु खैरा सलीम शाकिर साहब। मेरे भाइयों दोस्तों,
नेपाल के सुनने वाले साथियों से गुजारिश है कि 2-4 रुपया खर्च करें और 041-590-239 इस पर आप कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमसे सवाल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, सवालात के जवाब हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से फेसबुक NID पर आप हमें देख सकते हैं लाइव और सुन सकते हैं। जनक नंदनी FM ये भी हमारा एक फेसबुक है, चल रहा है, रेडियो का है, उस पर भी चल रहा है और आप उस पे सवाल लिख करके भेज सकते हैं। सलीम शाकिर साहब फिर लिखे, शेख साहब आप लोगों की दीन की इशाअत करते हैं, क्या आपने? देखिए, एक ही सवाल को दोबारा न भेजें तो बेहतर है, दोबारा चला आता है। मोहम्मद निज़ाम इरबियम सवाल मेरा भी, अब क्या लिखें? निज़ाम साहब अपना सवाल भेजिए, आपका क्या सवाल है भेजिए लिख करके, तब मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब देने की कोशिश करूँगा। दूसरा सवाल जो फेसबुक पर आया है, अकीक़ा की हकीकत क्या है? शादी ब्याह या मिलाद में जिस जानवर को ज़बह करेंगे क्या उसमें अकीक़ा की नीयत दुरुस्त है? ऐनुल हक कबाड़ी राज बिराज, ये व्हाट्सएप पर आया है सवाल, कतर से राज बिराज के रहने वाले भाई हैं। अकीक़ा की हकीकत क्या? देखिए, अकीक़ा उस जानवर को कहते हैं जो बच्चे की पैदाइश पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करने के लिए 7वें दिन ज़बह किया जाता है उस बच्चे के नाम से। अगर लड़का है तो 2 जानवर, बकरा या बकरी, एक ही उम्र के, एक ही तौर तरीके के, एक ही तरह से 2 बकरे, मुज़क्कर मुअन्नस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मुज़क्कर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर एक लड़की है तो उसकी तरफ से 1 जानवर हम करें, ये है अकीक़ा। 7वें दिन करें, 7वें दिन अगर मुयस्सर न हो तो आप उसको क्या करें, 14वें दिन, 21वें दिन, और अगर इन 3 दिनों में मुयस्सर न हो तो ज़िंदगी में किसी भी दिन आप सवाल अकीक़ा कर सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दूसरा हिस्सा है सवाल का, शादी विवाह या मिलाद में जिस जानवर को ज़बह करेंगे क्या उसमें अकीक़ा की नियत दुरुस्त है? देखिए, शादी ब्याह वलीमा में जो जानवर, वलीमा एक अलग चीज़ है, अकीक़ा एक अलग चीज़ है। हाँ, अलबत्ता अगर आप अकीक़ा का अलग जानवर ज़बह कर रहे हैं और वलीमा का अलग जानवर ज़बह कर रहे हैं और दोनों को मिला करके मेहमानों को खिला रहे हैं, अड़ोस पड़ोस को खिला रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ आप अकीक़ा ही करें और कह दें कि हमने वलीमा किया है और वलीमा में खिला रहे हैं, अकीक़ा कह करके उसकी नियत करके और कह रहे हैं कि हम वलीमा किए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। हाँ, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप लड़का की तरफ से करते हैं तो 2 जानवर आप अलग से करें और वलीमा के लिए जानवर अलग करें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं होगी। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मोहम्मद निज़ाम साहब से मेरी गुजारिश है कि आप अपना सवाल, हाँ सवाल आया है आपका, विदेश के हंसने की क्या हकीकत है, ज़रा वजाहत कर दें। हंसने की, निज़ाम साहब मैं आपका सवाल समझा नहीं, आप इसकी वजाहत करें कि विदेश के हंसने की क्या हकीकत है। मैं समझा नहीं सवाल को, इसलिए आप दोबारा इसको लिख करके भेजें, तब इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कलाम अंसारी, सफ़ेद बाल को काला करना कैसा है? सुना है कि जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलती है बाल को काला करने वाले को। देखिए, बाल को काला करना, काली मेहंदी लगाना बाल में, ये जायज़ नहीं है। आप लाल मेहंदी लगाएं, काला मेहंदी आप न लगाएं। हाँ, अलबत्ता लाल और काले के बीच बीच में जो होता है भूरे रंग का, जिसको अरबी में कतम कहते हैं, अरबी में कतम कहते हैं, जो न ज़्यादा लाल है न ज़्यादा काला है, बीच बीच का है, तो उसको कतम कहते हैं अरबी में, उसको आप लगा सकते हैं। ब्राउन कलर का आप लगा सकते हैं अगर ब्राउन मान लिया जाए तो, या आप लाल में थोड़ा काला मिला लें और मिला करके न काला ही हो न ज़्यादा लाल, बीच बीच का हो,
तो इस तरह से आप जो है सफ़ेद बाल को आप रंगीन कर सकते हैं। लेकिन काला करके 75-80 साल की उम्र है और काला बाल काली दाढ़ी लेकर के माशाअल्लाह किसको आप दिखला रहे हैं और किसको फुसला रहे हैं, हाँ? अपनी उम्र और अपने वक़ार को देखिए, आप किसको धोखा दे रहे हैं। यह काली मेहंदी लगा करके हम जवान नज़र आ रहे हैं। अल्लाह के पास अगर जवान नज़र आ जाए तो बेहतर बात है। इसलिए काली मेहंदी लगाना यह जायज़ नहीं है। ये जो है हदीस की रूह से और अहले इल्म के कौल के हिसाब से बिल्कुल गलत है, हराम है। हाँ, अलबत्ता आप कतम लगा सकते हैं, कतम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, 041-590-239 आपके पास खुला हुआ है, लाइन खुली हुई है। आप इसको आप कॉल कर सकते हैं और आप अपना जवाब पा सकते हैं। तीसरा सवाल जो व्हाट्सएप पर आया है, एक शादीशुदा औरत का किसी दूसरे मर्द से अगर हमल ठहर जाए तो ऐसी सूरत में औरत को क्या किया जाए और बच्चे को भी। शमशाद राज चौहरवा। देखिए मेरे भाइयों, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त कि शौहर बाहर कमाते हैं, मुसीबत झेलते हैं और दूसरों की नौकरी बजा लाते हैं, वहाँ टॉयलेट साफ करते हैं, रोड पर धूप में काम करते हैं और यहाँ कुछ औरतें गुलछर्रे उड़ाती हैं जो बिल्कुल हराम और जायज़ नहीं है। उन औरतों को समझना चाहिए कि हमारा शौहर जिस तरह से हमसे जुदा है, अलग है और परेशान हाल है, तो उसी तरीक़े से हम भी उनकी इज्जत की, उनके माल की हिफाजत करें। ऐसी सोच होनी चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। हम बहुत सारी माओं को देखा गया है। देखिए जो है रबियतुर राय, एक इतने बड़े आलिम गुजरे हैं, उनके वाली साहब जब उन पेट ही में थे, बच्चे ही हमल ही की हालत में थे, तो वो जिहाद में चले गए अपनी बीवी को 30,000 दिनार दे करके कि जब जो बच्चा हो उसकी तो अच्छी तरह से देख देख करना। जब आए तो पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो कहा जाइए मस्जिद में आप जा करके 2 रकात नमाज पढ़ के आइए। आए तो जब पूछा कि भाई मस्जिद में कुछ देखा आपने, तो कहा कि देखा तो एक आलिम दीन नौजवान है और वो पूरे लोगों को बैठा करके दीन की नसीहत कर रहा है। तो कहा कि वो 30,000 आपके नज़दीक ज़्यादा बेहतर है कि वो बच्चा बेहतर है? तो कहा कि नहीं, वो बच्चा बेहतर है, बच्चा अगर उस तरह से मिल जाए तो बहुत बेहतर बात है। तो बीवी ने कहा कि वही आपका लड़का है और आपका पैसा मैंने ज़ाय नहीं क्या लगाया। देखिए 30 बरस शौहर अलग रहा, 30 बरस अलग रहा। यहाँ तो 2 साल पे छुट्टी होती है, 1 साल पे छुट्टी होती है, फिर भी औरतें ख़यानत करती हैं। ये बिल्कुल हराम और बिल्कुल गलत है। ऐसा करना किसी भी समाज में जायज़ नहीं है। आइए सवाल की तरफ आते हैं कि अगर किसी औरत से ये गुनाह सरजद हो जाए तो अगर शौहर उसको रखना चाहे, नसीहत करके रखे और वो औरत तौबा तिल्ला कर रही है, अगर शौहर मान रहा है तो वो तो शौहर के ऊपर है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन अगर शौहर चाहे कि न रखें तो उसको तलाक दे दे। अगर वो बच्चा को भी इनकार कर दे कि हमारा ये बच्चा नहीं है, तो वो बच्चा उस औरत का हो जाएगा और वो औरत उसको लेकर के अपने मैके जाएगी और वो बच्चा उसी का कहलाएगा। ये जो है शरीयत का हुक्म है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो उसका ज़िना वाज़े नहीं हुआ और जो है शौहर के जाने के जो मुद्दत होती है हमल की, उसी मुद्दत में अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल वलदु लिल फिराश वलिल आहिर हजर, कि बच्चा बिछौने वाले के लिए, जिस बिछौने पर बच्चा पैदा हुआ, जिस घर में बच्चा पैदा हुआ उसका है, और जानी के लिए पत्थर है। जानी के लिए क्या है? पत्थर है। यह हदीस बुखारी हदीस नंबर 2053, मुस्लिम हदीस नंबर 1457। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये शौहर के ऊपर है। अगर शौहर उस औरत को कबूल कर रहा है तो उसकी फराख दिली है, नहीं कबूल कर रहा है, बदचलन है, तो उसको चाहिए तो तलाक दे दे और तलाक दे करके वो अपने मैके चले जाए, अपने बच्चे को भी बाहर ले जाए। अल्लाह आलम बिस्समा। सिराज भाई काठमांडू से फिर सवाल किए कि औरत इमामत कर सकती है या नहीं, और अगर 2 या 4 औरत एक साथ नमाज पढ़ती हैं तो कैसे पढ़ेंगी? कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दें। देखिए औरत औरतों की इमामत कर सकती है, औरतों की
इमामत कर सकती है। अगर 2-4 औरतें जमा हो जाएं तो चाहिए कि इमाम को उसके बीच में खड़े हो, अगली सफ के बीच में खड़े। जैसे मिसाल के तौर पर 10 एक सफ में आ गई 10 औरतें, तो 5 उधर 5 इधर और बीच में वो खड़ी होकर के इमामत कराएगी। ये तरीका। औरत इमाम बन सकती है औरतों की, मर्द की इमाम किसी भी सूरत में नहीं बन सकती। अगर शौहर जाहिल है, मूर्ख है, नहीं कुछ जानता है और वो ये चाहे कि बीवी पढ़ी लिखी है तो बीवी तुम नमाज पढ़ाओ मैं पीछे नमाज पढ़ता हूँ, ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है, कतन जायज़ नहीं है। आजकल एक नया फैशन निकला है कि औरत मर्द के बराबर है। औरत मर्द के बराबर है बहुत सारी चीज़ों में, औरत मर्द के बराबर है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो औरत मर्द के बराबर नहीं है। और न और मर्द औरत के बराबर है। औरत बच्चा देती है, मर्द कभी नहीं दे सकता है। मर्द बहुत ऐसा काम करता है जिसमें औरत नहीं कर सकती है। तो ये बराबरी हर चीज में शरीयत ने नहीं रखी है। कुछ चीजों में बराबरी है, कुछ चीजों में नहीं है। तो ये एक फैशन आ गया कि औरत क्यों नहीं मर्द की इमामत करा सकती है। तो फेसबुक पर देखेंगे और यूट्यूब में देखेंगे कि औरत इमामत करा रही है फलां जगह हैदराबाद में या किस जगह इमामत करा रही है। और ये बराबरी के हुकूक, ये बराबरी के हुकूक नहीं है, जायज़ ही नहीं है, कतन जायज़ नहीं है। इसलिए ऐसे फेल से, ऐसे काम से आदमी को दूर रहना चाहिए। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मोहम्मद निज़ाम फिर लिखते हैं क्या बिदाते हैस किंडली क्या हकीम है। देखिए मैं आपका सवाल ही नहीं समझ पा रहा हूँ। आप हिंदी में लिख करके भेजिए बराए करम। मैं आपका सवाल ही नहीं समझ रहा हूँ कि आप क्या लिख रहे हैं। लिख करके पढ़ लीजिए और कहाँ क्या है उसको फिर भेजिए। और अंग्रेजी का लफ्ज़ न लाइए, अंग्रेजी में उतना नहीं समझता हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, और भी व्हाट्सएप पर सवाल आया है और मेरा टाइम भी बहुत ही कम बाकी रह गया है, तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप पर आया है वो भी बोल दूं और आपके जो सवालात आ रहे हैं फेसबुक पर उनके भी जवाब दूं। चौथा सवाल जो व्हाट्सएप पर आया है, गैर मुस्लिमों के त्योहारों या क्रिसमस में बधाई देना और उनके पकवान वगैरह खाना और उनके मेले में शरीक होना इस्लाम की रूह से कैसा है। आलम कबाड़ी अधियानपुर। देखिए इन ऐसे त्योहारों में या क्रिसमस डे पर बधाई देना ये जायज़ नहीं है, कतन जायज़ नहीं है। बधाई दे करके गोया के आप ये साबित कर रहे हैं कि हाँ हम आपके इस शिरकिया आमाल से खुश हैं, तो इस तरह से बधाई देना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से उनके जो पकवान है अगर उनके माबूदों पर चढ़ाए गए हैं तो चढ़ाए हुए खाना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से उनके मेला में शरीक होना ये भी किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। बहुत सारे मुसलमानों को देखा गया है कि नाच गान में या शिरकिया मेला में दुकान लगाते हैं और वहाँ दुकान देते हैं, देखते हैं, दुकान देते हैं, दुकान भी चलाते हैं और नाच भी देखते हैं। तो कहते हैं कि तेल भी बेचते हैं और नाच भी देखते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके मेले में शरीक होना यह कतअन जायज़ नहीं है, बिल्कुल हराम है। ये ताउन जो है शिर्क और गुनाह पर ताउन है। तो इसलिए इन चीज़ों से आदमी को बचना चाहिए, मुसलमानों को बचना चाहिए। इस्लाम हमारा सबसे उत्तम धर्म है और इसी पर हम जचे रहें। और इसलिए एक आदमी ने किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी मुझे आप किसी ऐसे बात की वसीयत कीजिए कि मैं उस पर चलूँ। तो आप सल्लल्लाहु फरमाया कि कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। कहा कि आप सल्लल्लाहु फरमाया कि कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया और उसी पर कायम रहो, उसी पर कायम रहो। तो अल्लाह तबारक तआला पर ईमान लाना हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। दूसरा एक और सवाल आया है कि ऐसा ज़बीहा जिसको कलमगो मुसलमान ज़बह करे पर उस जानवर को कंट्रोल करने के लिए किसी गैर मुस्लिम की मदद ली जा सकती या नहीं, वाज़ेह फरमाएं। कि साहिल जवाब अपना नाम नहीं लिखा है। हाँ, अगर आप मुसलमान होकर ज़बह कर रहे हैं तो पकड़ने के लिए या गोश्त को टुकड़ा करने के लिए या चमड़ा छीलने के लिए किसी गैर मुस्लिम की मदद ले रहे हैं तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। यहाँ तक कि अगर कुर्बानी का भी जानवर हो, अकीका का भी जानवर हो, अगर गैर मुस्लिम को उसको टुकड़ा टुकड़ा करने में आप ताउन ले रहे हैं तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है इंशाअल्लाह तबारक तआला। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं लौ ज़बह मुस्लिमुन शातन सुम्मा क़द्दहा मजूसी हल्ला, कि अगर किसी मुस्लिम ने ज़बह किया बकरी को और किसी मजूसी ने उसको टुकड़ा टुकड़ा किया
تو حلال ہے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ یہ مجموع جلد نمبر 5 حدیث صفحہ نمبر 100۔ اللہ عالم بالصواب۔ ماشاء اللہ، ایک سائل نے سوال کیا ہے، وہ ہے بشیر محمد بشیر حسین، آپ کا مسلک کون سا ہے؟ دیکھیں یہی مصیبت ہے، یہی مصیبت ہے۔ ارے ہم جو کہہ رہے ہیں اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو اس کو لیجئے، اور نہیں قرآن حدیث کے مطابق تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ مسلک کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ مسلک کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ فرانس والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی تو وہاں مسلک چھٹی آیا، وہاں مسلک چھٹی آیا؟ نہیں چھٹی آیا۔ تو آپ کیوں چھٹی آ رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریے، یہی ہمارا دین، یہی ہمارا دھرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیز، صرف 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں پر جب تک تم عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت، میری باتیں، میرے فرامین، جو آج بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کے شکلوں میں آپ کے سامنے، ہمارے سامنے موجود ہے، ذرہ برابر بھی ہیر پھیر نہیں ہے۔ نہ قرآن کی ایک آیت، ایک حرکت، ایک زبر زیر میں بھی کوئی فرق ہے، اور کچھ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو مسلک کے چکر مت پڑے، آپ میری بات سنیں، اگر میری بات قرآن حدیث سے موافق ہے تو الحمدللہ، اگر قرآن حدیث سے موافق نہیں ہے، آپ کے نزدیک قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو آپ آزاد ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ ایک اور سوال واٹس ایپ پر آیا ہے، جو میرا ٹائم بھی اب تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ غیر مسلمین بھی رہتے ہیں، اور جس کمرے میں رہتا ہوں اس میں مورتی کے فوٹو بھی ہیں، کیا اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ دلاور بابو مہولیا۔ دیکھیے میرے بھائی دوستو، اس گھر میں، جس گھر میں تصویر ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکہ، کہ وہ گھر جس میں فوٹو ہوتا ہے، مورتی ہوتی ہے، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2105، مسلم شریف حدیث نمبر 2107۔ اس حدیث کی روح سے آپ کے روم میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو کیمپ باس سے کہہ کر روم چینج کر لیں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو مجبوری کے عالم میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اور نماز پڑھتے ہوئے وہ فوٹو آپ کے سامنے اگر نہیں ہے، پیچھے ہے، تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اگر سامنے ہے تو اس پر کپڑا رکھ دیں اور نماز پڑھیں، اور اس غیر مسلم روم پارٹنر کو نصیحت کرتے رہیں، دین اسلام کی خوبیاں بتلاتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں نرمی پیدا کرے اور وہ اسلام سے قریب ہو جائے، لیکن سمجھاتے وقت نرمی اور محبت لازم ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ اور غصہ یہ ہمارے اسلام میں نہیں، لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں ڈانٹ ڈپٹ اور یہ مشکل نہیں ہے۔ لاسٹ سوال جو واٹس ایپ پر آیا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، 1-2 سوال اور آئے ہیں، انشاءاللہ پیش کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ وفات پانے والا عمر، جن کے پاس 5 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں، 2 بھائی نیز بہن 3 ہیں، بیوی پہلے وفات پا چکی، ترکہ میں 2 بیگھہ زمین اور 6 لاکھ نقدی چھوڑے ہیں، اس کا کیسے ہم بانٹیں گے اس کو؟ جال محمد مارر۔ دیکھیے میرے بھائی دوستو، بیٹی اور بیٹے کے موجودگی میں بھائی اور بہن کو حصہ نہیں ملے گا، مرنے والے کے بھائی بہن کو حصہ نہیں ملے گا۔ اگر بیٹی اور بیٹے ہیں تو وہ 0 ہیں۔ اب یہاں آپ کیا کریں، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا اور بیٹا کو 2 حصہ ملے گا، تو بیٹیاں 5 ہیں اور بیٹے 4 ہیں، تو 4 کو آپ 2 گنا کر کے 8 کر دیں، یعنی 8 ہو گئے، 8 حصہ ہو گیا، تو 2 بیگھہ کو آپ 5 اور 8 13 ہو گیا، 13 جگہ پھانٹ لگائیں اور 2 بیٹے کو دیں اور 1 بیٹی کو دیں۔ اسی طریقے سے 6 لاکھ نقدی ہیں، 6 لاکھ نقدی کو آپ 13 حصہ کر لیں، چاہے جتنا پڑے، 5000 7000 جتنا پڑے، ان 6 لاکھ کو 13 جگہوں پہ کر کے 2 کر کے بیٹے کو دے دیں، 8 حصہ بیٹے کو اور 5 حصہ بیٹیوں کو دے دیں۔ یہی آپ کے سوال کا جواب ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی میں آپ کا حل موجود ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ پھر نظام صاحب لکھے ہیں کہ بدعت حیث کن دلے کیا ہے؟
ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے آپ کے سوال، تو ہم کیا جواب دیں آپ کو؟ ہم آپ کا جواب ہم کیا دیں؟ بدعت حسنہ کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں اب آپ لکھیں بدعت حسنہ کی کیا حقیقت ہے۔ دیکھیے اسلام میں کوئی بھی بدعت حسنہ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، لغوی اعتبار سے ہو سکتا ہے ہو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر اسلام میں نئی نکالی گئی چیز بدعت ہے۔ دیکھیے بدعت کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جس کو عبادت سمجھا جائے اور اس کا کوئی فرمان، اس کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں نہ ہو۔ ثلاث قرون، جو 3 قرنیں جو گزرے، 3 جو زمانے نیک گزرے ہیں، ان میں اس کا کوئی ثبوت فرمان نہ ہو اور وہ عبادت سمجھ کر اگر کیا جا رہا ہے تو وہ بدعت ہے، اور ایسی بدعت کوئی حسنہ اسنہ نہیں ہے، پورے کے پورے بدعت گمراہی ہے، اور ان بدعت کو چھوڑنا واجب ہے۔ ہاں اس میں کوئی بدعت بڑی ہے اور کوئی بدعت چھوٹی ہے، تو لیکن ساری کی ساری بدعت ہے۔ لیکن لغوی اعتبار سے بدعت حسنہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی جماعت کو بدعت حسنہ کہا تھا، تو وہ لغوی اعتبار سے انہوں نے کہا تھا۔ اللہ عالم بصواب۔ امید کہ نظام صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ پھر نظام صاحب لکھیں کیا عورت نماز میں اقامت کر سکتے؟ میں اس کا جواب دے دیا ہوں، آپ سن لیں میرا صدائے حق یوٹیوب جب چینل بنے گا انشاءاللہ 4 بجے 5 بجے تک آ جائے گا، تو آپ اس میں سن سکتے ہیں۔ صدائے حق لکھیں گے یوٹیوب میں تو آپ کے سامنے پورا آ جائے گا۔ محمد لیاقت انصاری، ہمارا مسلک سنت رسول ہے، یعنی جواب دیا ہے لیاقت صاحب نے یہ سننے والے کو کہ ہمارا مسلک رسول ہے، سنت رسول ہے۔ پھر محمد بشیر حسین وہ پھر لکھے ہیں سر آپ اپنا مسلک نہیں بتائے۔ اب دیکھیے بھائی ضد ہی کیے ہوئے ہیں تو اب میں کیا کروں؟ لیاقت صاحب نے آپ کو جواب دے دیا کہ ہمارا مسلک سنت رسول ہے، سنت رسول جہاں مل جائے گی کسی کی بات ہم نہیں مانیں گے، سنت رسول کی بات مانیں گے بس۔ ہمارا مسلک قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور حدیث کے موافق جن کی بھی بات ملے گی آمنا و صدقنا، اور اگر نہیں ملے گی تو پھر ہم ان سے روگردانی کریں گے اور اعراض کریں گے۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے، بلکہ ختم ہو گیا ہے، میرا ٹائم 4 منٹ زیادہ ہو گیا۔ میں اب آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ آپ سامعین سے میری ایک گزارش ہے، جو بھائی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں مکہ مدینہ قطر دبئی بحرین وغیرہ میں، کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، آپ ان کی صحت اور شفا یابی کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ بچے کو جلد شفا یابی عطا فرمائے۔ اور اسی بات کو لے کر میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ جو بھائی بھی سوال کیے ہیں ان کے اس سوال و جواب کو قبول فرمائے۔ جہاں جہاں بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کما رہے ہیں، اللہ تو ان کو ہر بلا سے محفوظ رکھ، ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی نبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ